Hello guys, welcome to my channel. So as I said in my previous video that I will be uploading the MCQs on the AI Communication Skills 2, that is the chapter 1 of your book part A, right? So here I go with the best MCQs on the artificial intelligence. If you do all these MCQs, then you will be thorough with the chapter, right? So before I start, I want to inform you that in my website, in the description link, my website is given. Here you will get all the notes regarding whatever I am teaching in the video. All the notes are in the written form. It will be present in my website, right? And the questions will appear on the screen. So if possible, pause the video and write it in the comment. Okay? So here I go. So the first question appears on the screen. How much percent takes up the verbal communication? कितना परसेंटेज वर्बल कम्युनिकेशन, पूरे कम्युनिकेशन में कितना परसेंटेज वर्बल कम्युनिकेशन होता है? ऑप्शंस आर 35%, 30%, 45%, 65%. What will be the answer? Comment down fast, or else you pause the video and wait for the answer. So the answer is option A, 35%. You can see in my screen a pop-up came, right? Here I have given the verbal communication and non-verbal communication, the percentage. So verbal communication percentage is 35%. पूरे communication से 35% आपका verbal communication है. चलो, let's go to next question. So next question on the screen comes. Second, the language in verbal communication is which one? First option is denotative. Second option is connotative. Third option is both A and B. And option D is none of these. Which will be the one? Fast. So here comes the options. So which one will be the correct option? So here the correct option is both A and B. Okay, now you will be thinking, what is denotative and connotative? Denotative means the meaning which is written in your dictionary, जो meaning आपके dictionary में लिखा हुआ है. और connotative मतलब कि जो हम लोग बोलते हैं उसका दो meanings निकलता है. जैसे mad, he is mad at me, he is mad about me. ओके तो ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग है. एक है कि एंग्री वाला मैड है और दूसरा वाला है लाइकिंग वाला मैड. तो यही है कोनोटेटिव. कोनोटेटिव मतलब एक ही शब्द को वी आर यूजिंग इट इन डिफरेंट वे. ओके सो यस, नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन नीड्स गुड कमांड ओवर लैंग्वेज? कौन सा वाला कम्युनिकेशन लैंग्वेज के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा? Number 1, option number 1, oral communication. Option number 2, written communication. Option number 3, both A and B. And option number 4, none of these. So, which one will be the correct option? Correct option is number B, written communication. See, लैंग्वेज में हम लोग तो थोड़ा ग्रामेटिकल एरर फिर भी चलता है, पर रिटन कम्युनिकेशन में ग्रामेटिकल एरर नहीं चलेगा. ठीक है, तो in written communication you should have a good command over language. okay? आपका लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, आपका वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया. नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन? तो वर्बल कम्युनिकेशन हम अपने वीडियो में समझा चुके हैं. प्लीज मेरा वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट 1 वाला. ओके तो उधर आपको समझ में आ जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है. सो द ऑप्शंस आर डायरेक्ट मैसेज, बॉडी लैंग्वेज, एक्टिव लिसनिंग और वोकैबुलरी. तो ऑप्शन नंबर, ये सब जो ऑप्शंस दिए हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा. ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन वाले में कौन नॉट दिया हुआ है. ये क्वेश्चंस, इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत मिलता है बोर्ड एग्जाम्स में. ओके, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नॉट इज देयर एंड वेरियस स्टूडेंट्स आर देयर, दे डोंट नोटिस इवन द नॉट. okay, and they are giving the wrong answer. So here which of this is not a effective verbal communication? तो not में कौन सा वाला आएगा? बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में ये बॉडी लैंग्वेज नहीं आता है, बॉडी लैंग्वेज नहीं देखते हम लोग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ नेक्स्ट द 5th नंबर क्वेश्चन, loose clumsy handshake is also called. Now you will be seeing so many types of handshakes, right? One is power shake, one is boardroom shake, number 3 is dead fish shake, and number 4 is wet fish shake, right? So these are the 4 options. Okay, these are the various types of shakes. So which one will be the loose one? Loose and clumsy means like a casual handshake you are doing, right? So that will be the dead fish shake. Okay, option number C. Option number C, the dead fish shake. Correct? Okay. Next, we move to the next question. Question number 6. Firm handshake reflex. अगर आप एकदम जकड़ के हैंडशेक कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एनर्जी. ऑप्शन बी, लो कॉन्फिडेंस. ऑप्शन सी, नेगेटिव एनर्जी. एंड ऑप्शन डी, डिसरेस्पेक्ट. तो इनमें से कौन सा होगा? बोलिए कि फार्म हैंडशेक, कब आप फार्म हैंडशेक करते हैं? सोचिए थोड़ा. ओके, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन गोज ऑप्शन नंबर ए, कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एनर्जी. ओके, कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एनर्जी, राइट. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7, right? That is on the screen. The factors that constitute non-verbal communication are referred to as. Non-verbal communication का factors को all together क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? Option number A, proxemics. Option number B, facial expression. Option number C, haptics. And option number D, body language. तो इनमें से कौन सा वाला होगा? सोचिए थोड़ा. So here the options are proxemics, facial expression, haptics and body language. तो proxemics मतलब क्या? फिजिकल स्पेसिंग, ठीक है, कि थोड़ा फिजिकल स्पेस रख के हम लोग को बात करना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट है कि फेशियल एक्सप्रेशन तो आपको पता ही है, हाँ. और हैप्टिक्स, हैप्टिक्स मतलब टच, हाँ, थोड़ा टची टाइप का ना हो जाए, ये सब है. ओके, नाउ बॉडी लैंग्वेज. तो इनमें से कौन, सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी लैंग्वेज. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. तो बॉडी लैंग्वेज में ही सब कुछ आ जा रहा है ना. आपका बॉडी लैंग्वेज सही रहेगा तभी तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सही रहेगा. ओके, सो बॉडी लैंग्वेज के अंदर ही ये सब कुछ आ रहा है. प्रॉक्सिमिक्स आ रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल, आप फेस में क्या एक्सप्रेशन डाल रहे हैं वही तो आपका है ना बॉडी लैंग्वेज. ओके, so next we go to the next question, that is question number 8. Before that, please subscribe my channel so that you will get all the videos, okay, upcoming videos, and you will not miss it. And please press the bell icon, right? Okay, so question number 8, here it goes. Sense of time. तो टाइम का सेंस, हम लोग बोलते हैं ना पंक्चुअल होना चाहिए, पंक्चुअल, तो उसको क्या बोलते हैं? अभी कंप्यूटर लैंग्वेज में, एआई लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे कि सेंस ऑफ टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं. सो द ऑप्शंस आर प्रॉक्सिमिक्स, क्रोमैटिक्स, हैप्टिक्स, क्रोनेमिक्स. तो इनमें से कौन सा वाला है? द ऑप्शन इज बी, क्रोमैटिक्स. बाकी सब तो हम आपको बोल ही चुके हैं. प्रॉक्सिमिक्स मतलब क्या? फिजिकल स्पेसिंग. हैप्टिक्स मतलब टच वाला. और क्रोमैटिक्स मतलब क्या? कि ये जो सेंस ऑफ टाइम, ओके. और क्रोनेमिक्स वाला है सेंस ऑफ कलर. क्रोनेमिक्स मतलब सेंस ऑफ कलर, राइट. ओके, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. Which type of communication provides least chance of misinterpretation? जहां पे लीस्ट चांस और मतलब गलत फैमिली बहुत कम होता है. कौन सा वाला कम्युनिकेशन में? एक है क्या वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड ऑप्शन नॉन वर्बल, थर्ड ऑप्शन विजुअल कम्युनिकेशन, एंड द फोर्थ बोथ ए एंड बी. कौन सा वाला होगा? ऑप्शन सी, विजुअली. आप तो देख रहे हैं, किसी का बात सुन नहीं रहे, आप अपने आंखों से देख रहे हैं. तो इससे मिस इंटरप्रिटेशन बहुत कम होता है, गलत फैमिली बहुत कम होता है विजुअल कम्युनिकेशन में, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 ऑन द स्क्रीन. इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसीव्ड मैसेज इज कॉल्ड. जो मैसेज रिसीव करता है, ओके, जो मैसेज रिसीव करता है वो अलग है,
मैसेज को पढ़ के समझता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्शन ए डिकोडिंग, ऑप्शन बी एनकोडिंग, ऑप्शन सी फीडबैक एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो विच वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए डिकोडिंग, राइट? ऑप्शन ए डिकोड कर रहे हैं हम लोग. एनकोड मतलब क्या कि किस तरीके से आप मैसेज लिख रहे हैं और उस तरीका को समझने का चीज है डिकोडिंग. ओके ओके, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 11 ऑन द स्क्रीन. व्हाट कंप्लीट्स द कम्युनिकेशन साइकिल? ऑप्शन ए रिसीवर, ऑप्शन बी मैसेज, ऑप्शन सी फीडबैक एंड ऑप्शन डी रेस्पॉन्स. सो इनमें से कौन सा वाला होगा? तो सोचिए, रिसीवर तो नहीं होगा क्योंकि रिसीवर को तो डिकोड करना पड़ता है, ठीक है. मैसेज तो हम लोग भेज रहे हैं, वो तो हर एक साइकिल के हर एक स्टेज में आएगा. फीडबैक और रेस्पॉन्स, तो करेक्ट ऑप्शन इज फीडबैक, ऑप्शन सी, राइट. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12 ऑन द स्क्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फीचर? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा. नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट, आई हैव सेड व्हाट? नॉट. ओके, ये क्वेश्चंस आप हमेशा गलती करते हैं बोर्ड एग्जाम्स में कि आप वो वाला देखते ही नहीं है, नॉट दिया हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिएगा. सो ऑप्शंस आर सपोर्टिव, बी कंसिस्टेंट, सी डायमेंशनल, डी कंस्ट्रक्टिव. तो ये क्या होता है कि गुड फीडबैक का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा वाला नहीं है? वो है ऑप्शन सी डायमेंशनल. ये सिर्फ डायमेंशनल नहीं होता है, ये मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है. गुड फीडबैक सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे नहीं जाता, ये मल्टी डायमेंशनल देता है, ठीक है. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी डायमेंशनल. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. फीडबैक विच इज गिवन एट अ सर्टेन टाइम इंटरवल, जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए पॉजिटिव फीडबैक, ऑप्शन बी नेगेटिव फीडबैक, ऑप्शन सी डेस्क्रिप्टिव फीडबैक, ऑप्शन डी स्ट्रक्चर्ड फीडबैक. तो इनमें से कौन सा वाला होगा? पॉजिटिव नेगेटिव तो देते ही रहते हैं, है ना. तो डेस्क्रिप्टिव कौन देता है? वो ज्यादातर लोग नहीं देते हैं. ओके, दे यूज इट फॉर स्पेसिफिक पर्पस. तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी descriptive. Okay, so I hope you are enjoying my video. Okay, please do like and subscribe. Okay, so we move on to the 14th number question on the screen. The word communication, the best question. See here, the word communication comes from the Latin word. कौन सा वाला word होगा? ठीक है, communicate, communicare, communicaron और communica. तो कौन सा वाला लैटिन वर्ड से ये कम्युनिकेशन वर्ड आया है? ये आया है कम्युनिकेट से, ठीक है. ऑप्शन नंबर बी कम्युनिकेट, कम्युनिकेट से नहीं आया है. लोग ज्यादातर इसी में ही गलती कर देते हैं, कम्युनिकेशन है, टी है, तो इसीलिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कम्युनिकेट, राइट. ओके, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. डैश आर नीडेड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विथ पीपल. तो आप जब पीपल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इफेक्टिव कौन सा वाला स्किल है? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, आईसीटी स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. तो इनमें से कौन सा वाला होगा? आप जब कम्युनिकेट करेंगे तो क्या चाहिए? टाइम मैनेजमेंट क्यों चाहिए आपको? आईसीटी टेक्नोलॉजी का स्किल्स क्यों चाहिए? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्यों चाहिए? चाहिए क्या? कम्युनिकेशन स्किल्स. ढंग से कम्युनिकेट अगर नहीं कर पाए तो स्किल्स तो वो आपको सुनेंगे ही नहीं, सुनेंगे क्या? तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल. सो द करेक्ट ऑप्शन गोज हियर, ऑप्शन बी, राइट. सो नेक्स्ट ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 16, right? Okay, the dash conveys the message to the sender in the form of feedback to complete the communication cycle. कौन मैसेज सेंड करता है फीडबैक के जैसे टू कम्युनिकेशन साइकिल को कंप्लीट कर पाए? सो द ऑप्शंस आर सेंडर, रिसीवर, एनवायरमेंट, सर्कमस्टांसेस. तो कौन सेंड करता है? ऑब्वियसली जो सेंडर तो सेंड कर रहे हैं, ठीक है, रिसीवर सेंड करने के बाद ना उसको फीडबैक देगा. तो द ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन बी. ओके, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, that is question number 17. Which of the following method is used to communicate when the same message has to be out to a large group of people?
कौन सा वाला मेथड सबसे अच्छा होगा कि आपको कम्युनिकेट करना है एक मैसेज विच यू आर रीचिंग आउट टू लार्ज, बहुत जन को आपको बोलना है, large number of people. So the correct option means the options are face to face, email, notice, posters, business meeting. business meeting कितने कितने लोग के साथ करेंगे, है ना? business meeting तो नहीं कर सकते. ओके, ईमेल कितने लोग को भेजेंगे? फेस टू फेस. और क्या है? नोटिस और पोस्टर्स. तो नोटिस और पोस्टर्स लगा दो, है ना? हम लोग क्या करते हैं कि पोस्टर्स लगा देते हैं ना. अगर कोई भी स्कूल में कुछ भी वैकेंसी रहा तो पोस्टर लगा देते हैं वो लोग. थोड़ी क्या एक एक कोई ईमेल भेजते रहेंगे, कितना टाइम लग जाएगा, राइट? ओके, सो वी मूव ऑन टू द 18th नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक? पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल कौन सा है? एक, डोंट डू इट दिस वे. नंबर बी, गुड जॉब, कीप अप विद द कम्युनिकेशन. ऑप्शन सी, there's least interest invested by you on this walk. And option D, you're not attempting full-fledgedly. तो इनमें से पॉजिटिव कौन सा है? सब तो मुझे नेगेटिव दिख रहा है. डोंट, यू आर नॉट पुटिंग इंटरेस्ट, यू आर नॉट अटेम्प्टिंग, सब नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस है. सिर्फ एक है ऑप्शन बी, वो है पॉजिटिव फीडबैक की गुड जॉब, है ना? पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक में फर्क क्या है? पॉजिटिव फीडबैक ये चीज है कि वो देने से वो लोग इतना चाहते हैं कि वो लोग खुश हैं. दे आर हैप्पी विथ योर कम्युनिकेशन, योर सर्विस. बट नेगेटिव फीडबैक मीन्स व्हाट? दे नीड सम इम्प्रूवमेंट इन योर सर्विस, इन योर स्किल्स. उन लोग को इम्प्रूवमेंट चाहिए, तभी ना वो लोग नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, है ना? ओके, सो वी मूव ऑन टू द 19th नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस? नाउ this is goes to the English grammar part कि ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस किस किस टाइप का होता है. ठीक है, एक तो है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, दूसरा है प्रीपोजिशन, तीसरा है कि बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी इज फर्स्ट एंड सेकंड, राइट? फर्स्ट एंड सेकंड. सो हियर यू गो विथ what is the correct answer? Direct and indirect, okay, preposition, both A and B, first and second. कुछ verbs के बारे में बोला गया है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो नहीं बोला गया है. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट. आप लोग तो पढ़े ही होंगे ना ये चीज, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब मतलब क्या? कि जो जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो ईटिंग इधर वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल. तो आई एम ईटिंग एन एप्पल हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अगर हम बोलते हैं कि आई एम ईटिंग, क्या खा रहे हैं आप? कुछ बोले आप सेंटेंस में, खा क्या रहे हैं आप? ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो ईटिंग वाला क्या हो गया? इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया. ठीक है, तो ईटिंग वाला इनट्रांजिटिव वर्ब, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं. तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, और प्रीपोजिशन. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड प्रीपोजिशन. ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी तो जानना चाहिए, है ना? वो भी सेंटेंस में होता है. ओके, राइट. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20. ऑन सीइंग द लायन ही रैन अवे. मेक इट अ कॉम्प्लेक्स sentence. Okay, this is also from grammar part. You will get in the AI questions. Okay, so lion को देखने से वो he ran away, दौड़ के चला गया. इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग? कि हम लोग इधर कुछ कंजंक्शंस यूज करते हैं. तो चलो ऑप्शंस देख लेते हैं. On seeing the lion and he ran away. As soon as he saw the lion, he ran away. He ran away on seeing the lion, or none of these. कौन सा सही लग रहा है? बोलिए. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में अंतर क्या है? बोलिए ना थोड़ा. So okay, here we are coming with the complex sentence and compound sentence. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है कि इसमें एक मेन क्लॉज रहेगा और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज रहेगा. और कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट इंटरमीडिएट क्लॉजेस रहेंगे. ठीक है,
तो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ये तो आपको पता होगा इंग्लिश में। मेन क्लॉज मतलब उसको अगर हम मतलब बाकी सेंटेंस को अगर हटा देते तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज मतलब जो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड है। एक सेंटेंस जो एक फ्रेज है, वो फ्रेज आपका क्लॉज वो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों ही रहेगा। ठीक है, सो इधर देखिए ऑप्शंस में एज सुन एज ही सॉ द लायन ही रैन अवे। तो अगर हम लोग बोलते ही रैन अवे, ये हो गया आपका मेन क्लॉज, और एज सुन एज ही हो गया सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। हाँ, द लाइन एज सुन एज ही ये हो गया सबऑर्डिनेट, क्योंकि वो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो और एक चीज आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये आप लोगों को माइंड में आ रहा होगा कि हम लोग एआई में इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? We are studying about communication. We are studying about next chapter में आएगा, मेरा next videos में आएंगे, स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। क्यों बोलिए ना, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये सब? इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। क्योंकि जिसको ये एआई सब्जेक्ट पढ़ना है ना, तो जिसको आगे जाके पढ़ना है उसको क्या चाहिए? रोबोट बनाना है कि नहीं? अभी मैक्सिमम प्रोजेक्ट इस रोबोट के ऊपर, सोफिया नाम का जो रोबोट है, आप तो जानते ही होंगे कि इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो वो अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, राइट? सो टू रन मतलब फुल्ली डेवलप तो हो चुका है, बट क्या कि इट हैज टू इमिटेट ह्यूमन ब्रेन्स प्रॉपरली। सो जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने वाले हैं उन लोगों को ये सब के बारे में जानना चाहिए। एक तो आप रोबोट को भी तो उन लोगों को बेसिक्स तो एकदम समझाना पड़ेगा, क्योंकि दे आर मशीन्स, दे विल इमिटेट आवर ब्रेन, राइट? तो उन लोगों को तो ये अच्छे से समझना चाहिए कभी क्या यूज होने वाला है, राइट? So that's why we are teaching on all the aspects, whether it's stress, whether it's any kind of emergencies, okay, whether it's communication. A robot has to know everything, right? So that's why we are learning all this. Okay, now next we move on to the question number 21. The students who are good, they do their homework regularly. इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, द स्टूडेंट्स हु आर गुड दे डू देयर होमवर्क रेगुलरली। तो इसको कौन सा वाला होगा? गुड स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क रेगुलरली। हु आर गुड ऐसे हम लोग इनडायरेक्टली बोल रहे हैं ना, तो इसको हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। तो द स्टूडेंट्स हु आर गुड दे डू देयर होमवर्क रेगुलरली। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, गुड स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क रेगुलरली, राइट? Okay. Next we move on to the 22nd number question, that is, so on the screen, why waste time in this fruitless occupation? Change to assertive sentence. Types of sentence you will be knowing, right? Declarative or assertive, imperative, interrogative, right? Exclamatory sentence. So this you have to change it to assertive sentence. So the options are, should I waste time in this fruitless occupation? Option B, I should not waste time in this fruitless occupation. Option C, don't waste time in this fruitless occupation. And option D, none of this. So the correct option is B, I should not waste time in this fruitless occupation. First वाला जो option है वो interrogative हो गया है, ठीक है? Okay, we move on to the next part, that is 23. On the screen, having done his work, he left the place. So we have to change it to compound sentence. तो compound sentence में आपको पता है intermediate clause रहेंगे. तो here the options are, he done his work and left the place. He did his work and left the place. After he had done his work, he left the place, and none of this. चलो जल्दी से आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है?
So you have to make it a compound sentence. So he done his work and left the place. Done or did. Do, did, done. Past participle में होगा. ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन देखिए, हैविंग डन हिज वर्क ही लेफ्ट द प्लेस, वो पास्ट पार्टिसिपल में है, राइट? ओके, दैट्स व्हाई द ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट वन. ओके ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू द 24th नंबर क्वेश्चन. आई नो हिज नेम चेंजेस टू कम्प्लेक्स सेंटेंस. कम्प्लेक्स मतलब क्या? एक मेन क्लॉज रहेगा और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. तो ये क्या होगा? ऑप्शंस आर व्हाट हिज नेम इज, आई नो व्हाट इज हिज नेम इज, आई न्यू हिज नेम, एंड नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज आई नो व्हाट हिज नेम इज. ऑप्शन नंबर बी. ओके, ऑप्शन नंबर बी. ओके, now next we move on to the 25th question. Never tell lie. What type of question this is? Means what type of sentence this is? Okay, never tell lie. ये क्या बोल रहे हैं? ये सलाह दे रहे हैं ना आपको. तो ये कौन सा वाला सेंटेंस के अंदर आ रहा है? Imperative. Option number C. So the options, it's on the screen, right? So the correct option is C. We move on to the next question, question number 26. That is, which of these is not a common communication barrier? Communication barrier मतलब कौन आपका communication में barrier डालते हैं? तो इधर not दिया हुआ है, तो कौन सा वाला होगा? Linguistic barrier, interpersonal barrier, financial barrier और organizational barrier. तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, मेरे साइट्स में, ठीक है? तो इनमें से कौन सा वाला होगा? लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल. सो लिंग्विस्टिक बैरियर मीन्स कि आपको अगर लैक ऑफ नॉलेज हुआ किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है, तो बाकी तो आपको पता ही चल रहा है. ओके, बाय सीइंग द नेम्स, इंटरपर्सनल, फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइजेशनल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज फाइनेंशियल. ये कुछ ज्यादा कॉमन नहीं है, बाकी सब बहुत कॉमन होता है. ओके, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. Which of the following is not true for providing feedback? Not true. Okay, so here are the options. Look into the options. Emphasize or positive feedback. Receive the response with narrow mind. Do not make personal comments. None of these. तो इसमें से कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी. रिसीव द रिस्पॉन्स विथ नैरो माइंड. नैरो माइंडेड से नहीं लेना चाहिए फीडबैक. आप कहीं काम कर रहे हैं, फीडबैक को पॉजिटिव वे से लीजिए ताकि आप इम्प्रूव कर सके. आप इम्प्रूव करेंगे तो बाकी सब भी खुश रहेंगे, राइट? ऑल विल बी हैप्पी विथ यू with the feedback that you have incorporated the feedback in your activities. Okay, so these are what basic things, you people all know. You are going to restaurants, you are giving feedbacks. I'm making video, you will give feedback in my comment, right? You will give, right? What I have to improve, I will do that. What you want me to do, okay, what videos you want me to make, I will do that. Okay, that's what a positive feedback. I will take it, I will not take it personally. I will just do what you want. Okay, so next question comes on the screen. 28. Which of the following 7 C's? The book you will be having 7 C's of effective communication. That means which of the following 7 C's of effective communication prevent misinterpretation? कौन सा वाला C में हम लोग मिसइंटरप्रिटेशन प्रिवेंट कर सकते हैं? तो पहला वाला है कोर्टियस, सेकेंड इज कंसिडरेट, थर्ड इज कंक्रीट एंड डी इज करेक्ट. सो मिस इंटरप्रिटेशन अगर नहीं होगा, अगर हम लोगों का मैसेज कंक्रीट रहा तो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द 29th क्वेश्चन. सेम टाइप ऑफ देयर 7 C's के ऊपर ही 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा वाला सी प्रोमोट्स ट्रस्ट. ओके, विच प्रोमोट्स ट्रस्ट? तो कोर्टियस, कंसिडरेट, कंक्रीट, करेक्ट. विच विल बी द करेक्ट वन? करेक्ट, ऑप्शन डी. ओके, करेक्ट कम्युनिकेट करिए, आप लोगों के भरोसा जीतिए, है ना? विन एवरीवन्स ट्रस्ट, सो एवरीवन विल ट्रस्ट यू, एवरीवन विल ट्रस्ट योर वीडियो, राइट? इफ यू आर थ्रोइंग फेक न्यूज,
Obviously no one will be following you. Okay. So we move on to the next question, that is question number 30. Which of the following 7 C's of effective communication promotes understanding? कौन सा वाला बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है? ठीक है, ऑप्शंस आर कोर्टियस, कंसिडरेट, कंक्रीट, क्लियर. तो ऑब्वियसली व्हाट इट विल बी, बाय द नेम्स ओनली यू कैन अंडरस्टैंड, इट शुड बी क्लियर. क्लियर, अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपका मैसेज क्लियर है, तो ऑब्वियसली सबको ही समझेंगे, इट विल बी अंडरस्टैंडेबल, राइट? ओके, so next question on the screen, question number 31. Which of the following 7 C's of effective communication saves time? It saves time. Which one? Courteous, concise, concrete, or correct? So which will be the one? Concise. Concise means to the point. वो meaning में बता रहा है ना, concise मतलब to the point. Okay, so here the correct option is B. So we move on to the 32 number question, that is, so question number 32 on the screen. Which of the following 7 C's of effective communication avoids confusion? Confusion ना हो तो कौन सा वाला C लगेगा? Complete, considerate, concrete, correct. Which is the correct one? Complete. Complete message डाला कीजिए, है ना, तो confusion कम रहेगा, right? If you are telling I will come to meet you at 7 what? PM or AM? Complete message दीजिए. Okay, so we move on to the 33 number question, that is, which of the following is the characteristics of effective communication? Effective communication effective हो तो उसका कैसे characteristics होना चाहिए? Option A, concise and to the point. Option B, leads to desired output and achievements. Option C, establishes responsibility. And option D, all of these. So what do you think? All the options are correct, right? Concise होना चाहिए, to the point होना चाहिए, एक desired output भी देना चाहिए, और responsibility एक establish करते हैं. आप जब effective communication करेंगे ना, so your responsibility will also increase. Okay, so number 34 on the screen. Speech disorder may lead to which kind of communication barrier? अगर किसी को स्पीच डिसऑर्डर है, ठीक से कन्वे नहीं कर सकता, तो वो वाला को कौन सा वाला बैरियर बोलते हैं? विच टाइप ऑफ बैरियर? ऑप्शन ए साइकोलॉजी बैरियर, ऑप्शन बी इमोशनल, ऑप्शन सी परसेप्शन, ऑप्शन डी लिंग्विस्टिक. सो इट विल बी साइकोलॉजी बैरियर. ओके, जो स्पीच डिसऑर्डर होते हैं तो उसको साइकोलॉजी बैरियर बोलते हैं, राइट? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. Now question number 35 on the screen. The inability to communicate using a language. तो लैंग्वेज के बिना आप कम्युनिकेट कर रहे तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सा वाला बैरियर बोलते हैं? कि लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे, जस्ट यू आर शोइंग जेस्चर्स, तो उसको क्या बोलते हैं? जस्ट अभी फ्यू क्वेश्चंस बैक आई हैव टोल्ड यू. हाँ, the options are psychology barrier, emotional, perception, linguistic. So which one will be the correct one? Linguistic barrier. Okay, I'm bit fast because time is not there, right? Your board examinations are approaching. Okay, so don't waste your time. Okay, yes. So question number 35, the answer is D, linguistic barrier. Now question number 36 on the screen. People belonging to different culture are not able to communicate, which leads to, मतलब जो कल्चर में ये नहीं कर सकते, मतलब ये लोग कम्युनिकेट, कल्चर की वजह से कम्युनिकेट नहीं हो रहा है. ओके, तो उसको कौन सा वाला बैरियर बोलते हैं? कल्चरल बैरियर, इमोशनल बैरियर, परसेप्शन बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर. तो नाम के जैसा ही वही बैरियर है जैसे कल्चरल बैरियर, राइट? ओके, next we move on to the 37th number question on the screen. Which of the following is an effective method of overcoming language barrier? लैंग्वेज बैरियर को कैसे ओवरकम करेंगे आप? अगर लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इफ यू आर स्पीकिंग विथ समवन हुज लैंग्वेज इट डजंट मैच, सो व्हाट यू विल डू? यू विल यूज जेस्चर, और यू आप कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे? नहीं, यूज योर ओन लैंग्वेज, खुद का लैंग्वेज यूज करेंगे, और यू विल यूज अ ट्रांसलेटर. बेस्ट इज यूज अ ट्रांसलेटर, राइट? तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन 37D. नाउ 38 का है क्या? 38 on the screen.
Which of the following is or are the importance of feedback? Feedback का importance क्या क्या है? Creating unhealthy relationship? Obviously not. Democratic approach? Yes. Better understanding? Yes. So the option is option D, both B and C. B and C दोनों ही correct है. Okay. Next we move on to the 39th question on the screen. ये थोड़ा application based question है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. Imagine that you went into a meeting. आप meeting में गए with the assumption that it was going to be a major waste of time. What kind of barrier it creates? आप एक मीटिंग में गए, आपको पता है कि वो मीटिंग में कुछ ज्यादा होने वाले नहीं है. ओके, इट विल बी जस्ट सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो ये कौन सा, किस टाइप का बैरियर है? ये साइकोलॉजी बैरियर, इमोशनल बैरियर, परसेप्शनल बैरियर और लिंग्विस्टिक बैरियर. ये है आपका परसेप्शनल बैरियर. परसेप्चुअल बैरियर. परसेप्शन रहना अच्छी बात है कि ठीक है इधर जाके ये होगा वो होगा, आप परसेप्शंस लगा रहे हैं, पर उसको भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए. ठीक है, तो ये हो गया आपका परसेप्चुअल बैरियर. नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो दैट इज ऑन द स्क्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इफेक्टिव मेथड टू ओवरकम परसेप्चुअल बैरियर? तो जो हम एग्जाम्पल पहले 39 क्वेश्चन में दिए उसको ओवरकम कैसे करेंगे? कि आपको पता है कि मीटिंग में ज्यादा कुछ होने वाले नहीं है, आपको पता है कि आपका पूरा टाइम वेस्ट होने वाला है, तो आप उसको ओवरकम कैसे करेंगे? ऑप्शन ए, व्यू सिचुएशन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव. मतलब हर एक एंगल से देखिए सिचुएशन को. आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चन. सपोर्ट योर पॉइंट्स विद फैक्ट एग्जांपल्स. ऑल ऑफ द अबव. तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा वाला होगा? आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. तो आप, हम बोले ना इंटरेस्टिंग बनाइए उसको, तो वो मीटिंग को. तो कैसे बनाएंगे? आप डाउट्स क्लियर कीजिए, आपको भी इंटरेस्ट लगेगा और बाकी सब भी एंगेज्ड हो जाएंगे और जल्दी खत्म भी हो जाएगा, राइट? सो एंड यू कैन प्रूव योर पॉइंट्स if you are thinking that the point said by the narrator is not a correct one. So you just give your example, you give your facts, then it will be interesting for you. Okay, others you leave it, it will be interesting for you at least, right? So and you view the situations, whatever the topic is going on in the meeting, you see what all situations you can incorporate that topic. So from different perspective, you take that topic, take the situation and give them the example. Everyone will be impressed also and your time will also be good, right? Okay, so that's it. This is all 40 questions from the chapter 1. Okay, communication skills 2. And this is the best part is that all the various aspects are covered here. Okay, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ठीक है, ओके. सो आई टेक योर लीव एंड प्लीज स्टडी वेल and all the MCQs are very important. Make a note and also visit my website. There all the notes on all the topics are given. Okay, thank you so much for watching the video. Thanks.